He's Chief Sales Officer, Emaar India, and he's been a stalwart in real estate with more than 2 decades of experience. Now, he's someone who's worked with DLF, he's worked with Elevate, he's worked with Supertech and many other brands, and today he's heading one of the best in the country. How much does the economic growth of India plays a role in? Economic growth in India has been exceptional and entire world is talking about it. Gurgaon and Delhi NCR is really welcoming migrants from across the country, across the states. Why? Because there are a lot of job opportunity. इंडिया का ऑफिस सेंटर गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर बनते जा रहा है, इंडिया का बनते जा रहा है. दिस इज नॉट, ये बात वो नहीं रहेगी कि नॉर्थ का, बट इंडिया का बनते जा रहा है. सम पीपल फ्रॉम बॉम्बे मे नॉट लाइक दिस, बट दैट्स अ फैक्ट. वी आर टेकिंग अवे बॉम्बे's glory in some form or the other. Youngsters, they want to have a good time in life. They want to balance their life. They want vacations. They want parties every day. 200 अपार्टमेंट उनको बेचने थे, वो 200 अपार्टमेंट की अलॉटमेंट करके. तो जब मार्केट में तेजी होती है तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन को छोड़ के वो इसमें आ जाते हैं. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, चैनल पार्टनर्स बन जाते हैं. बट वो कब तक? जब तक मार्केट में तेजी है, तेजी है. चेके उठाने हैं. Real estate is the second asset class Yeah. which can actually make you wealthy. पुरानी सेइंग तो यही है कि खरीदो, फाइल बंद करो, लॉकर में डालो, भूल जाओ. नहीं, वो पुरानी सेइंग थी, बट आज की डेट में वो मैं नहीं कहूँगा कि वो अच्छी बात है. अब मुझे लगता है कि जितनी हॉरिजेंटल ग्रोथ करनी थी गुड़गांव ने वो कर लिया. अब इट विल बी वाइड स्प्रेड. इट विल बी वाइड स्प्रेड. वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इतने स्पेशल हैं क्योंकि जब हमने अपना पॉडकास्ट 2 साल पहले शुरू किया था, ही वॉज आवर फर्स्ट गेस्ट. ओके, दो इनका एपिसोड सेकंड था, बट सबसे पहला शूट हमने इनके साथ किया था. ये कौन है थोड़ी रुक के बताता हूँ, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पिछले 3 महीने में, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, we've had 2.8 million square feet office area leased out in NCR. And Gurgaon leads with 60% market share. This is very big news. Despite what is happening in the world, in Delhi NCR, office space is booming. Now, his name is Bharat Bhushan Bhatia. He's Chief Sales Officer, Emaar India, and he's been a stalwart in real estate with more than 2 decades of experience. Now, he's someone who's worked with DLF, he's worked with Elevate, he's worked with Supertech and many other brands. And today he's heading one of the best in the country. Now, with him, what we are going to talk about is what is this office space boom all about and how it impacts not only investors but the entire real estate industry as a whole. So let's welcome Bharat. Thank you so much, Bharat, for accepting our invitation. Thank you very much, Vipin bhai. It is always a pleasure to be with you. And I've been watching and monitoring your podcasts. They are really interesting. They are really professional now. I can say that the kind of knowledge you churn while you interact with all those who come for your podcast, it is immense and it is very knowledgeable. And especially when we started this journey 2 years back, I was thinking that it'll only be for the real estate professionals. But somehow I feel that now I'm coming after a long time. And I think last 10, 12 or maybe 15 podcasts I saw, there was nobody from real estate. Yeah. No, last time there were a couple of, but I would say out of the 92, 93 episodes we've shot so far, about 60% is real estate, but there's 40% Very are nice, non. very nice. So it's really interesting, and I wish you all the very best for future, also. Thank you so much, Bharat. सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 2.8 million square feet in one quarter in 2026. When we are talking about the world saying कि हम लोग layoffs कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, Delhi NCR has seen that kind of leasing. What is the reason behind it? So Vipin bhai, I'll tell you very practically that Gurgaon, market और Delhi NCR market अगर मैं बोलूँ तो ये लास्ट 6 साल में it has reached to a different level where there are a lot of jobs being created, right? And this leasing, why it happened? Because now transformation is happening. People are
migrating from work from home culture to the office culture. I can tell you one thing that when एग्जाम्पल के साथ मैं हमेशा से बात करता हूँ कि अगर आप घर में भी मंदिर होता है आपके, राइट, बट आप मंदिर क्यों जाते हैं? You need that environment, right? Similarly, for a professional, I think it is very important to get that environment. So now companies, seniors, HR of the companies, they have understood one thing, that if they want to increase the efficiency of employees, they will have to provide that environment to them, and that's the reason this leasing is seeing a surge, drastically in past 2-3 years. So you're saying a big part of it is the pent up demand जो पहले work from home में चले गए थे वो लोग वापस आए. Absolutely. That plays a big Absolutely, that plays a big role. And how much does the economic growth of India plays a role in this? See, I think I always say that Modi ji and BJP, I am not being very political here, but I must tell you that if we see our GDPs, growing the way, stabilizing, and it is not only in northern part of the country, it is across, you know, and economic growth, when I say, India has shown in last 14 years or 13 years of leadership under Mr. Modi, a very stable growth in terms of GDP. And I would say that there was a data which I was studying, that earlier there used to be a particular set of people below the poverty line. It is decreasing every day, right? So per capita income is growing every day, right? We are in a place sitting right now where per capita income is, I think, the highest in the country, if I'm not, one of the highest. one of the highest. Always in top 3. Yes, always in top 3. And maybe the data, if we churn today, it'll be maybe the number 1. But economic growth in India has been exceptional, and entire world is talking about it. War effect, right? Entire world was scared. But our economy, yes, there was too much of effect on our equity market. But if you see, it is again come back to the normal. Back to normal. There was no panic in the professionals, in the corporate world, because I belong to a corporate world. There was no panic at all. We were so confident that we, being in Indian, we have no threat. And have you ever heard in India that there are so many jobs being lost? I don't think so. I am still hiring, right? Our company is still hiring. Everywhere there is a hiring. In fact, we to always say that there is too much of scarcity of talent, right? Because we are not been able to get desired number of people which we want. There is always a scarcity. There is always a gap, between what we want and what is there. So I feel that it is a great sign for us as a country that economic growth is stable, and we feel it is going to be even better in the times to come. Now, tell me one thing. In Delhi NCR, 2.8 million square feet, is the reason that Delhi is the capital? Does that play a role? I'll tell you. It's a very beautiful. So, why Mumbai used to be Mumbai, financial capital? Yeah. Because there used to be a lot of migrants, who used to come across the country, from Bihar, from UP, from anywhere in the country, even from north. A lot of people used to go to Mumbai. But now Gurgaon and Delhi NCR is really, really welcoming, migrants from across the country, across the states. Why? Because there are a lot of job opportunities. Be it a white collar job, or be it a blue collar job. So every job is available here. Again, there is a scarcity. So when there is a job opportunity in any city or any place, right? I don't know about how, when was the last time there was a census in NCR. But if we do it every 6 months, it will be a surprising number. It will be a surprising. I know for a fact that the population of Gurgaon is already crossed 30 lakhs. Which earlier the estimate was कि ये चीज़ 2031-32 में we will reach 30 lakhs, but we've already surpassed that. We are the most populated. Gurgaon is the most populated city after Delhi in the NCR region. Now, one more thing I want to understand, that how does office leasing and how does office going so high
makes an impact on residential market? Because residential launches बहुत हुए पिछले 3 4 5 साल में और अभी भी हो रहे हैं. I think Gurgaon leads about 73% of the new launches in the country happened in Gurgaon. So how does that complement that market? See, housing, I would say there are two kind of housing. One is leasing, when it comes to taking House on lease. apartment or a room on rent. And second is buying, right? So I would first touch base on, first leasing and, taking apartment on rent or maybe room on rent. So it is really, really surging very high because any migrant who's coming, so for example, a MBA graduate, who's from UP, got a campus placement, came here, he will not be able to buy it. He will only be able to lease it, right? So that market has actually been growing very fast. As far as residential, apartments being purchased is concerned, so Gurgaon, even in affordable housing, I was just talking to somebody yesterday. We are sitting right now in 58. There are few couple of, affordable housing projects here. Yeah. And they are selling at 90 lakh rupees. Yeah, close to a crore. Right, close to a crore. So which becomes very, very unaffordable for, youngsters. Or maybe somebody who's just started working, or maybe somebody is 3, 4, 5 years. So what happens is, there is a purchase, immediate purchase when a boy or a girl, working in a corporate world, they meet, they get married, and then their joint income becomes so high, and then they buy an apartment. So aspirations are also very high. Today, there is also one more factor which I will say, people don't want to, youngsters, they want to have a good time in life. They want to balance their life. They want vacations. They want, parties every day, right? I was telling somebody that in Gurgaon, I can tell you one thing, that there's no weekend, surge. Every day, Every day is a weekend. every day, right now we are sitting here, there is right next to your office, there is a Magnum Global. Yeah. Where whenever you go during the week, it is always full. Yeah. So I feel that those leasing apartments and taking apartments on rent, I think that demand is more. However, because of the affordability, I am feeling that demand for residential projects are little low, because somehow I feel that it is becoming little unaffordable for everyone to. That's the only reason? I think that is one of the reasons. That is one of the reasons. Another reason you can say that people are a bit scared also. There is a reason because nobody knows the fact, so it is all on hearsay. I can tell you, if somebody tells you कि यार अभी मत खरीदो, आप 6 महीने बाद खरीद लेना, देयर इज अ टाइम, हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है. तो स्टूपिड है. स्टूपिड है, बट लेकिन विपिन भाई आप ये समझिए कि जो Sentiment लेमैन है ना, लेमैन, उसको नहीं समझ में आता. उसको समझ में नहीं आता. उसको कभी भी समझ नहीं आता कि यार ये कौन सा समय है. रियल एस्टेट का अगर मुझसे पूछो, बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री, टुडे इज द डे व्हेन यू मस्ट बाय रियल एस्टेट. वो एनी टाइम इज द डे. इसमें ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट है. मेरा क्या है कि हम ना बहुत कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं ये स्लो है, स्लो. क्या स्लो है? आप खरीदने तो जाओ. आई हैव अ क्लाइंट who's been in touch with me for 3 months, और वो 3 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा है, मैं ना डील ढूंढ रहा हूँ. कल शाम को भी मेरी बात हुई उससे, मैं ना डील ढूंढ रहा हूँ. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो 8 डेवलपर्स के ऑफिस जा चुका है, 12 चैनल के ऑफिस जा चुका है, वो रीसेल वालों से भी कनेक्टेड है, वो प्लॉट भी लेने में इंटरेस्टेड है, वो मे बी SEO में भी लेने में इंटरेस्टेड है, कई चीज़ों. मैं डील ढूंढ रहा हूँ. और मैं हर बार उससे पूछता हूँ, मिली नहीं मिलेगी. आज भी गुड़गांव में जो रेडी मार्केट है, रेडी टू मूव इन मार्केट है, वो पैक्ड है. उसमें आपको डील नहीं मिलेगी. ठीक है. अब अगर कोई चीज 6 करोड़ की है, किसी ने 595 में या 590 में बेच दी, उसको डील नहीं कहते. यस, ठीक है, उसको डील नहीं कहते, क्योंकि उसको क्या पता, मे बी इज बाइंग समथिंग एल्स, ही नीड्स मनी फॉर दैट. तो दैट इज नॉट अ डील. ये रिलेटिव कॉन्वर्सेशन है. अभी भी एक डेवलपर का सोबा का मेरे ख्याल से लॉन्च था, एंड इट इज सोल्ड. या 200 अपार्टमेंट उनको बेचने थे, वो 200 अपार्टमेंट की अलॉटमेंट करके. तो ये रिलेटिव बातें हैं.
कि स्लो है। मेरे मतलब हम खरीदने जाते हैं, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी कोई स्लो दे देता है। आपके पास हम आएंगे, आप हमारे को डील दे दोगे कि जी कम दे दो मार्केट प्राइस से? बिल्कुल। वो फिर सिंपल सी चीज है। देखिए, लाइक आपने खुद बोला विपिन जी के सेंटिमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं हमेशा से अपने इंडस्ट्री कलीग्स को एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो लोग ये बात करते हैं ना, मार्केट स्लो है, मार्केट सॉफ्ट हो गई है, ये हम लोग ही करते हैं। हाँ, it is actually a statement which is actually industry specific statement. या मार्केट सॉफ्ट हो गई है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने ही दी है। मार्केट स्लो हो गई है, ये लेमैन की मार्केट है। लेमैन को अगर आप ये बोलोगे मार्केट स्लो हो गई है, उसको कुछ नहीं पता मार्केट स्लो क्या होती है। सी, one thing which I can tell you right now is that investors are little stuck, right? They are not been able to come out, right? And hence their investments are stuck, and hence they are not been able to invest further money because they are little stuck. So, but it is not the only investor who drives the market. द It एंड is यूजर्स। it is the end user. अच्छा, अभी क्या होगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ। देयर बी लॉट ऑफ पीपल जो आपके क्लाइंट जैसे हैं, जो डील ढूंढ रहे हैं। डील ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे होंगे ऐसे। हाँ। बट लेकिन बहुत सारे एंड यूजर्स जो हैं वो आज मार्केट में जब आएंगे, दे विल गेट अ लॉट ऑफ एज, यू नो, कि उनको प्राइसेस जो हैं वो अच्छे मिल जाएंगे, बेटर मिल जाएंगे, क्योंकि देर आर लेस बायर्स, बिकॉज इन्वेस्टर कैटेगरी जो है वो आज की डेट में थोड़ी सी कम है और वो पीछे है, दे आर यू नो ऑन अ बैक फुट। बट ऐसे एंड नहीं है, यूजर, पैसे नहीं है उनके पास। पैसे हैं उनके पास। देखिए, I was, because I have worked in previous company where I used to sell luxury apartments only. Vipin bhai, no default. हाँ, Everybody paid money, which means it was sold by, virtue of that, yes, they deserve this apartment or they can buy this apartment. They can keep this apartment till possession. So, अभी आई थिंक स्किल सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विपिन भाई। आप जैसे लोग या जो आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, ऐसा नहीं है मार्केट में तेज़ी नहीं होती, तेज़ी होती है। बिल्कुल होती। तो जब मार्केट में तेज़ी होती है तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन को छोड़ के वो इसमें आ जाते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, चैनल पार्टनर्स बन जाते हैं। बट वो कब तक, जब तक मार्केट में तेज़ी है, चेक उठाने हैं। चेक उठाने हैं, वहाँ पर कोई ऐसा दूसरा प्रोफेशनल चैनल पार्टनर्स, दे हैव अ स्पेसिफिक स्किल सेट, कस्टमर को पूरा एक्सप्लेन करना, बेंचमार्किंग कंपटीशन के बारे में बताना, उस एरिया के बारे में बताना। आज एक आदमी लखनऊ में बैठा है और उसको नहीं पता कुछ, राइट? उसको सिर्फ इतना पता है कि यार ये बहुत गुड़गांव तेज चल रहा है और ये प्रोजेक्ट आया है, इसको खरीद लो, ना तो उसको कंपनी के बारे में पता। सो broker plays a very important role. I was telling somebody, it was a young channel partner, but very close to my heart because he's a very hardworking boy. So I told him that you have to choose the developers right way. Yeah. Because if developers are good and their intention is to, make the project and deliver it on time, then you will never have a problem with your clients. Never. So once it is built. So I always give example of M3M, right, in a very, very positive fashion, that I have never seen anybody saying कि M3M ने ये बिल्डिंग बेची और उसको बनाया नहीं, उसको डिलीवर नहीं किया। बिफोर टाइम ही किया। सारे पाप धो दिए, बिफोर टाइम किया। बिफोर टाइम किया। तो अब उनको कोई भी जो मर्जी दुनिया बोलती रहे, वट एवर पीपल से, कई बार इन्वेस्टर कंपनी के बारे में इसलिए भी गलत बोल देता है कि वो पैसे नहीं कमा पाया। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बेचा है, कंपनी ने आपको एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेचा है, कंपनी ने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बेचा है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ समबडी इज सेलिंग यू अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी as a financial product, and if you're buying it that way, boss, it is your problem. It is not his problem, right? You have to understand this is a tangible asset, right? You will see it, you will feel it, you will touch it, and it will be with you, right? It will not be as liquid as a cash or a mutual fund or any other asset class or a gold, but it will always be a asset class which create lot of wealth for you, right? I was reading some article
Warren Buffett, is a great economist. He told that real estate is the second asset class Yeah. which can actually make you, wealthy. Yeah. Because what happens is there are a lot of asset classes where, we save money. So for example, if I put a SIP, 1 लाख रुपए महीने की मैंने SIP डाली और मैं उसको 2 साल तक दे रहा हूँ. अब क्या होगा, 2 साल के बाद सडनली मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी गाड़ी यार 2 बार खराब हो गई. चलो यार, लेट्स बाय अनदर कार, राइट? तो आई हैव काइंड ऑफ सेव्ड मनी, बट आई एम नॉट बीन एबल टू कीप इट सेव्ड. But when it comes to real estate, you buy some property, you never sell it in a, ये आसानी से नहीं बेच because it is not that liquid, which is I think for me, it is a positive पॉजिटिव part of पॉइंट. it. करेक्ट. देखो पुरानी सेइंग तो यही है कि खरीदो, फाइल बंद करो, लॉकर में डालो, भूल जाओ. नहीं, वो पुरानी सेइंग थी, बट आज की डेट में वो मैं नहीं कहूँगा कि वो अच्छी बात है. आई थिंक यू ऑलवेज गेट अपॉर्चुनिटीज. तब निकलो ना. तब निकलो आप. भाई अगर आपको लगता है कि आप बेटर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीदा, चाहे वो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, बट देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 4 years 5 years आई वुड लुक फॉरवर्ड टू हैव 4000 स्क्वायर फीट. तो 2500 को बेच के 4000 खरीद लो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और उसको, और दूसरा एक और चीज़ भी मैं बोलूँगा जो कि कोई नहीं बोलेगा आपको. आई वुड से जो हमारी ये पैसा है जो हमारा, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड हो, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी हो, एक ना इट इज़ लिटिल माइथोलॉजिकल कि ये सब लक्ष्मी के रूप हैं. हाँ हाँ. ये सब लक्ष्मी के रूप हैं. तो उस लक्ष्मी को, लक्ष्मी माँ जो है, जब भी आपके घर आती है तो वो किसी ना किसी दूसरे रूप में आती है. तो क्या आप उसको भोग सकते हो या नहीं भोग सकते हो, माँ डिसाइड करती है. सो फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी माँ आपके घर माँ के रूप में आई, आप उसको भोग नहीं पाओगे. आप उसको सेव करके रखोगे, उसको लॉकर में डाल दोगे, वो आपके कभी ना काम नहीं आएगी. वो पड़ी हुई है आपकी, वो आपकी लक्ष्मी है. बट लक्ष्मी माँ आपके पास आई है पत्नी के रूप में, राइट, या प्रेमिका के रूप में, तो आप उसको भोग पाओगे, आप उसको एंजॉय कर पाओगे, आप फॉरेन ट्रिप्स करोगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदोगे, आप घड़ियाँ खरीदोगे, आप अपनी जो भी इच्छाएं उसको पूरा करोगे. सो आई वुड से दैट मनी कम्स टू यू इन डिफरेंट वेज, राइट. बट वो भी एक ज़रूरी है कि अगर आप मनी को स्टक करके रखेंगे अपने पास, वो इकोनॉमी में पंप इन नहीं होगी, तो ना तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ना आप ग्रो करेंगे. सो एक प्रिंसिपल है इकोनॉमी का, अगर उसमें पैसा रोटेट करता रहे, चर्न करता रहे, तो इकोनॉमी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे. बट अगर इकोनॉमी आज इंडिया स्टॉप ग्रोइंग, हाउ विल यू ग्रो? यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो. No chance. Few years back, I remember you had only one co-working space. Today you have 3. It was only 25,000. Today it is more than 1 lakh square feet. Yeah. So you are growing because economy is growing. There is Correct. a lot of need for co-working space. So that's the reason. Yeah. So I think that is something very important. So commercial real estate से मेरा एक और मैं डेटा स्टडी कर रहा था, that for the first time the occupancy of retail has dropped to 8% in Delhi NCR. मतलब शॉकिंग है. लोग सोच रहे थे कोविड में रिटेल खत्म हो गया, बट आज सिर्फ 8% रिटेल स्पेस खाली है. देखिए, फिर से मैं आपको और जबकि ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है. फिर भी देखिए क्या होता इसका है. क्या रीजन है? इसका रीज़न ये है, बिकॉज ये शॉकिंग है. ऑफिस समझ में कि लोगों को जाना है, एनवायरनमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो समझ में. रिटेल का क्या रीजन? आपको बताता हूँ एक बड़ी अच्छी, या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? आई टेल यू. तो आपने कई अगर आपने कोई स्पिरिचुअल स्पीचेस सुनी हो, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात होती है कि सवेरा हुआ है तो रात भी होगी, रात हुई है तो सवेरा भी होगा, राइट. सो इन आवर कॉर्पोरेट लैंग्वेज इट इज़ द साइकिल, right? I still remember, I used to look at my mom's suits while she used to tell me these are the pictures when I was 20 years of age, 21 years of age, and I used to see कि यार मेरी माँ ने कैसा सूट पहना हुआ है, राइट. ये तो बड़ा अजीब है. लेकिन आज वो मेरी डॉटर पहन रही है सेम सूट. मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी मॉम को भी बोला. सो इट्स अ साइकिल. सो सिमिलरली पीपल यूज टू बी सो, अब कोविड टाइम में क्या हुआ, लोगों को मार्केट जाना ही खत्म हो गया, मॉल्स खाली होते थे. आज आप जाइए, आप एमिन्स मॉल में सैटरडे संडे जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी. आपको मॉल ऑफ इंडिया में जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी. आई नो समबडी हु कॉल्ड मी, इज अ वेरी बिग मैन. ही सेड, भरत, यू हैव वर्कड इन DLF, राइट. मॉल ऑफ इंडिया में मुझे सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट चाहिए.
तो आई कॉल्ड समबडी वेरी सीनियर आई नो, he says भरत भाई देयर इज अ 2 वेटिंग साल ऑफ की 5 years, 1000 फुट तो दूर की बात है, एक कोना भी नहीं दे पाऊंगा मैं. सो आई फील दैट व्हाट द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, 8%, मुझे लगता है वो 8% भी खाली नहीं होना चाहिए. बिकॉज आज की डेट में लोगों ने, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, ऑनलाइन आप जोमेटो स्विगी, अगर आप उनमें आप देखें तो इतनी ज़्यादा रात को उनकी शॉपिंग है, डिलीवरीज है, बट एट द सेम टाइम जब आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में वो भी फुल है. तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज पॉपुलेशन एंड लोगों की इनकम वो इतनी ज़्यादा है, इतनी बढ़ गई है कि दे आर यूजिंग रिटेल स्पेसेस नाउ, दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग, दे आर गोइंग आउट. तो अभी 10 दिन पहले मैं एक शादी में गया, इट वाज राजौरी गार्डन के पास कहीं. तो मेरी वाइफ, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, शी यूज्ड टू बी इन तिलक नगर, उसके मामा वहाँ रहते थे. तो वहाँ पर एक मार्केट लगी हुई थी. जब हम वापस आ रहे थे 11:30-12 बजे, विपिन भाई, आई कुड सी BMWs, मर्सिडीज वहाँ पर खड़ी हुई हैं, और लोग अच्छे अच्छे वहाँ पर, बाजार, वो ऐसे सड़क पे बाजार लगा हुआ है. तो आई टोल्ड माई वाइफ, आई सेड यार ये कौन सी मार्केट है? शी सेड ये बुध बाजार है. और यहाँ पर लोग कहते हम भी आते थे. तो मैंने देखा कि लोग रात को 11:30 बजे आके वहाँ बुध बाजार से फ्रूट्स खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं. देवर ऑफ कोर्स दे वर नॉट बाइंग दोज क्लोथ्स जो वहाँ पर लगे हुए थे, जो 100-200 रुपए वाले, बट दे वर शॉपिंग फ्रूट्स, दे वर शॉपिंग वेजिटेबल्स. सो आई कुड रियलाइज कि पीपल आर नाउ कमिंग आउट. दे आर, बहुत टाइम वो घर पे रहे, बहुत परेशान रहे. दूसरा एक और चीज़ भी है, आई थिंक विद एज, अब हर पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में, अब जब आप यंग होते हैं आपको लगता है जितना आप बाहर रहे उतना अच्छा है, अच्छा, राइट. जब आप मिडिल एज में आ जाते हैं तब आपको लगता है थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर. जब आप 50 क्रॉस कर जाते हैं तो आपको लगता है यार ऑफिस से आए घर पे रहो, राइट, हफ्ते में एक बार जाओ. हाँ. जब आप 70 क्रॉस कर जाते हो तो आपको लगता है यार कि घर पे रहूँ. तो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग वेरी यंग इन इंडिया, राइट, आई थिंक गोइंग आउट एंड ईटिंग आउट, एब्सोल्युटली गोइंग आउट, ईटिंग आउट, यूजिंग रिटेल स्पेसेस, कुछ नहीं भी खरीदना तब भी जाना है, तब भी जाना है, कॉफी पीने जाना. कॉफ़ी पीने जाना है, घूमने जाना है, विंडो शॉपिंग देखना है. मैं आपको एक और चीज़, आज सुबह एक चीज़ सर्च कर रहा था, उस पर बाद में आता हूँ, मगर एक पॉइंट और है. गिवन इतनी ज़्यादा ऑफिस लीजिंग हो रही है, दैट मीन्स इंडिया का ऑफिस सेंटर गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर बनते जा रहा है, और इंडिया का बनते जा रहा है. अब दिस इज़ नॉट, ये बात वो नहीं रहेगी कि नॉर्थ का, बट इंडिया का बनते जा रहा है. सम पीपल फ्रॉम बॉम्बे मे नॉट लाइक दिस, बट दैट्स अ फैक्ट. वी आर टेकिंग अवे बॉम्बेज ग्लोरी इन सम फॉर्म और दी अदर. एंड तो क्या होता है, ऑफिस में जो लोग जाते हैं, और कॉर्पोरेट कल्चर हमारा थोड़ा वेस्टर्नाइज तो हो ही गया है, इसमें कोई गलत नहीं है कहना. इन लोगों को, और माइग्रेट पॉपुलेशन है वो भी आपने बोल दी, ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन, उनको लंच के लिए भी कहीं जाना. मैं को वर्किंग सेंटर चलाता हूँ, मैंने देखा है ना, उनको लंच के लिए भी कहीं जाना है नीचे या कैफे में खाना है, उनको डिनर के लिए भी जाना है, उनको अर्ली ड्रिंक्स के लिए भी जाना है. उसका डे से कोई रिलेशन नहीं है. तो जो ऑफिस की डिमांड है वो अपने आप रिटेल को कंज्यूम करती जा रही है. See, I would relate it to lifestyle changes also. हाँ. Vivian bhai, like we are of same age, let me tell you, while we were young, we had different priorities. करेक्ट. But these youngsters, they have completely different, priorities. They work hard. ऐसा नहीं है, they work hard. But they know that, this is today. So, हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम लोग ये सोचते थे कि फ्यूचर में कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है. वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है. बोले आज क्या करना है हमें, what is today. So they live in today. We used to live in future, right? And there are people now, and let me also tell you, which I feel that today's generation, they don't believe in looking at the past. Whatever happened is happened. We get over it quick. Absolutely, they get over it, and they know what is today and what is tomorrow. Their vision is only for 6 months, 1 year. They don't think that we have to go and buy a house also in future. Today, what happens is that salaries are very high, and buying a car. विपिन भाई, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे आज भी याद है कि गाड़ी लेने के लिए ना एक फैमिली का वो होता था, विजन होता था कि हम डिसीजन होता था. यस, और वो ये लेनी है, उसमें- वो लेनी है, उसमें सेकंड हैंड सालों लेनी है, लग जाते नहीं थे, लेनी है. हाँ. उसमें सालों लग जाते थे. बट आज एक बच्चा जो आपके पास यहाँ पर आया है,
वो अपनी, चाहे वो वैगन आर में आए चाहे ऑल्टो में आए, ही डजंट वांट टू बी इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई आज अगर गुड़गांव में देखो, मुझसे अगर पूछो, गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है, राइट। और एक्सेप्ट फॉर ऊबर कुछ भी नहीं है। ऊबर है या कुछ ये रैपिड मेट्रो, जो कि मैं कहूँगा कि जो सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड पे है, राइट। अदरवाइज अगर आपने कहीं जाना है तो इट इज़ ओनली ऊबर, राइट। और अगर आप मेरे से पूछो, यंगस्टर्स जो हैं, दे डोंट इवन लाइक टू राइड टू व्हीलर्स दीज डेज। एवरीबडी नहीं, वांट्स नहीं, यहाँ तो टू व्हीलर्स ही नहीं है, आपके यहाँ नीचे, आप मेरे को कहीं पता नहीं है, कहीं नहीं कहीं होगा नहीं है, टू कहीं व्हीलर्स। नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इट इज़ अबाउट द विजन ऑफ यंगस्टर्स वर्सेस द विजन ऑफ मे बी 45 प्लस वर्सेस द विजन ऑफ मे बी 60 प्लस. So it is a huge difference which is creating this surge in Surge. retail Retail and spaces and office of spaces. course office spaces में तो Vipin bhai, today if you ask me, my daughter, she's working with ICICI Bank. अब उसका जो काम है, शी वर्क्स इन बिजनेस बैंकिंग ग्रुप, उसका जो काम है, जिस दिन उसने मीटिंग करनी है उस दिन मीटिंग करनी है। वो एक हफ्ते में 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, बट रोज नहीं होती। ठीक है, No, she works on her computer, but it is mandated for her to come to the office, करेक्ट, right? Which never used to be there earlier. Today, corporates have realized if you want efficient people, they have to work in that efficient environment. या It is not, विपिन भाई आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, बट क्या होता है कि जब आप उस एनवायरमेंट में नहीं होते ना, देन यू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर पे हूँ, राइट, मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, मेरी वाइफ जो है, ऑफ कोर्स ही वुड फील कि नहीं यार इसको डिस्टर्ब मत करो, ये काम कर रहा है, बट घर पे कुछ भी काम आ सकता है, हाँ, हाँ, कुछ भी काम आ सकता है, तो पूछ ही लेंगे सामने, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शन है। इसका एक और चीज़ है, ऑफ लेट ना, जब ये सब हुआ था कोविड, एक वर्ड आया था, जेनजी वर्ड है वैसे तो, मून लाइटिंग। तो वो बहुत सारा हुआ, एंड शुरू में तो कई लोगों ने सोचा ये नॉर्मल है, क्या है, मैं भाई ऑफिस आवर्स के बाद जो मर्जी करूं, बट वो स्पिल ओवर होना शुरू हो गया ऑफिस आवर्स में, एंड धीरे 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 ऑल द प्रोग्रेसिव माइंडसेट कंपनीज और प्रोग्रेसिव माइंडसेट एचआर रियलाइज्ड कि ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर कोई मून लाइटिंग कर रहा है, उसका दिमाग दिन में भी वहां जा सकता Yes, है। आप अपने दिमाग को लॉक नहीं कर सकते कि ये 9 से 5 ही मैं यही कर रहा हूँ, वो जाएगा ही जाएगा। एंड टू डू अवे विद दैट, people came back to office. Yes, definitely. And why not? If you ask me, I am very, very disciplined. I go to my office if there is a time 9:30, so 9:30, 10 है तो 10. तो अगर मेरे को ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो, जैसे कि कोविड में हुआ था, आई यूज टू बी एट होम सो मेनी डेज, बट तब मैं सुबह 8 बजे उठ के रेडी नहीं होता था, तब मैं 10 बजे उठता था, करेक्ट, और उठ के मैं हाँ, फिर सोचता था क्या करना है। स्लोली ग्रेजुअली। तो यू नीड द सेम थिंग, यू नीड एन एनवायरनमेंट। तो ऑफिस स्पेस का एनवायरनमेंट जो है Office ऑफिस में ही मिल सकता है। तो जस्ट टू लेट यू नो आवर व्यूअर्स, भरत भाई रिक्वेस्टेड कि 9 बजे शुरू करेंगे, आई नीड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, एंड ही वाज हियर एट 9 शार्प। भरत भाई एक चीज़ और बताओ, अब जैसे हमने ये इस्टेब्लिश किया कि ऑफिस डिमांड लीड्स टू रिटेल डिमांड एंड इट लीड्स टू हाउसिंग डिमांड ऑल्सो, तो हाउसिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन ग्रेट ऑफिस डिमांड, और वो गुड़गांव ने प्रूव किया है साइबर सिटी से, और आज तक प्रूव किया है। अब एक चीज़ ये बताओ, हम अगर छोटी सिटीज़ को देखते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आई डोंट थिंक ऑफिस डिमांड इतनी है, बट रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट वहाँ भी ग्रो किया है, एंड पीपल आर प्रोजेक्टिंग अ लॉट ऑफ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ टू बी डूइंग एज वेल एज गुड़गांव। बट अगर ऑफिस डिमांड नहीं होगी वहाँ पे, और माइग्रेशन इसी तरफ होती रहेगी, तो वहाँ पे उतना रेजिडेंशियल ग्रोथ सस्टेन कर पाएगा? हो ही नहीं सकता विपिन भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल। देखिए, खरीदना तो लोगों ने ही, अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ, उसमें रहना लोगों ने, खरीदना लोगों ने। सो अभी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन लिया, ये जेवर एयरपोर्ट का, द कंपनी नोएडा केम टू आवर ऑफिस, दे गेव द प्रेजेंटेशन। इट इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया विच दे आर डेवलपिंग, राइट। सिटी है पूरी सिटी है, बट आपको पता है उसके अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं वो? इंडस्ट्रियल टाउन पहले डेवलप कर रहे हैं। उसके अंदर जॉब्स क्रिएट करने की बात हो रही है, 10 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात हो रही है, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया की बात हो रही है। करेक्ट। सो आई थिंक इफ सम पीपल आर सेइंग कि ये एरिया रेजिडेंशियल बहुत ग्रो कर जाएगा, बट वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। और बॉस, एक
अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक शहर है, उसकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, वो सब लोग घरों में रह रहे हैं, चाहे वो किराए के घरों में रह रहे हैं, चाहे वो अपने घरों में रह रहे हैं। जब तक वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी और आसपास के लोग या दूर दराज के लोग वहाँ पर आके नौकरी नहीं करेंगे, वहाँ पर आके सेटल नहीं होंगे, हाउ वुड द डिमांड फॉर रेजिडेंशियल ग्रो? नो चांस। सो ये तो बिल्कुल सिंपल कोरिलेशन है बॉस, कि अगर नौकरियां ग्रो होंगी, पॉपुलेशन ग्रो होगी, माइग्रेंट्स आएंगे, तभी वहाँ रेजिडेंशियल सर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुड़गांव में ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस की डिमांड हाई है और सप्लाई लो होती जा रही है। इवन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में एवरेज प्राइस 20,000 रुपये स्क्वायर फीट हो चुका है। मतलब कोई 16 होगा तो कोई 18 होगा, कोई 25 भी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इन द कमिंग फ्यूचर कौन सी सस्टेनेबल माइक्रो मार्केट्स हैं ऑफिस स्पेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जहाँ हम बैठे हैं एक्सटेंशन रोड, ये तो मुझे लगता है कि आने वाले 7 से 10 साल में it is going to be unreachable for anyone, any new business to acquire a Office office space. space here. क्योंकि आज जहाँ हम बैठे हैं यहीं पर मेरे को लगता है 125-130 रुपये पर Rent स्क्वायर हो फीट का चुका है, रेंट हो हाँ। चुका है। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड a grade A office space या ईमार, या ईमार इंडिया इंडिया बिजनेस सेंटर, राइट? तो उसमें बहुत सारी लोग, इनफैक्ट आई विल टेल यू दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी लॉन्च्ड 10 लाख स्क्वायर फीट हमने एक साथ बेच दिया, एकदम से बेच दिया, राइट? क्यों? बिकॉज ग्रेड ए की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़े लोग हैं, वही लेते हैं। वो लेते हैं, बिकॉज उनको, भाई एक सिंपल सी बात है विपिन भाई, आपको अगर आज बोला जाए कि आप सियाज चला लो, आप सियाज नहीं चला सकते, राइट? आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, बिकॉज यू वांट दैट काइंड ऑफ कंफर्ट एंड Grade A, स्टेटस, राइट? ग्रेड ए। सिमिलरली फॉर कॉर्पोरेट्स, राइट, दे वांट ग्रेड ए ऑफिस, राइट? ग्रेड ए ऑफिस एट ग्रेड ए। अब फॉर एग्जांपल न्यू गुड़गांव में अगर आप ग्रेड ए ऑफिस क्रिएट करोगे, वहाँ पर आपका वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई कॉर्पोरेट आएगा, लोगों के, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका ऑफिस स्पेस अगर जहाँ पर है, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो नज़दीक है, राइट, या जहाँ पर लोग रीच कर सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं, आसानी से रात को घर जा सकते हैं, लोगों ने तो कहीं से भी आना है। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव में ग्रेड ए ऑफिस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल Golf course extension. extension road is right now the present, but it will soon be a future. I would say it will be unreachable in next 3 to 4 years or 5 years, right? Then I think second option would be, I feel that close to the airport, so Dwarka Expressway. अच्छा, So what happens is now, I don't know whether you are aware or not, so AeroCity, I am aware. it is Aerocity 2. 100% it is leased out. I know. So I And met 250 rupees a square feet and above. absolutely For office absolutely. space. Yes. So imagine why that place. Why? Yeah, next to the airport. Next to the airport. And पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे में रेजिडेंशियल ऑप्शन है। Absolutely, absolutely. So it is related to each other. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ऑप्शन विल बी द्वारका एक्सप्रेसवे, देन न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में आज की डेट में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स बहुत सारे हैं, राइट? और वो मार्केट जो है somehow is becoming a preferred choice for a resident customer, Correct. कि जिसको घर खरीदना है कहाँ जाए, न्यू गुड़गांव, बिकॉज it is a very I'll tell you, I also have a 26-acre development there, Yeah. by the name Serenity Hills. Serenity Hills, yeah. So imagine 26 acre of development I could have created only in that new Gurgaon area only. Because today, if you want to create similar kind of an environment, air and golf course extension or extension road, it is not possible. Even on Dwarka Expressway right now, it is not It's possible. not possible. So अब मुझे लगता है कि जितनी हॉरिजेंटल ग्रोथ करनी थी गुड़गांव ने, वो कर लिए। वो कर लिए। अब it will be widespread. It will be widespread. So we will have different micro markets. Golf course road, MG road, एक micro market, Cyber City एक micro market होगी. Then maybe golf course extension and SPR can be combined. So there also I would say something कि आपके ना corporates भी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी होते हैं, Correct. राइट? सो जो ग्रेड ए वाले कॉर्पोरेट हैं, दे विल नेवर गो अवे फ्रॉम साइबर सिटी
और मे बी गोल्फ कोर्स रोड और मे बी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ग्रेड बी जो होंगे उनको लगेगा कि यार वी कैन गो टू सम प्लेस वेयर SPR चले गए। सो कॉर्पोरेट ग्रीन्स, इट्स अ ब्यूटिफुल कमर्शियल yeah. developed by DLF and Heinz, right? It was earlier it was no brainer. वहाँ लोग लेकिन जाते ही नहीं थे बिकॉज वहाँ पर लोगों का पहुँचने का वो जरिया नहीं था। बट आज अगर आप वहाँ जाओगे यू विल सी कि लॉट ऑफ न्यू ऑफिसेज आर देयर, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर देयर, बट स्टिल दे हैव टू प्रोवाइड अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो आई नो समबडी इन कॉर्पोरेट ग्रीन्स, उन्होंने पूरा आई थिंक 60-70,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया हुआ है, बट दे हैव कैब्स एंड बसेज ऑल्सो Yeah. फॉर देयर एम्प्लॉयज। बट क्योंकि वो लोग यहाँ 60,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस नहीं अफोर्ड कर सकते थे, दैट तो उन्होंने वहाँ बना लिया। उन्होंने वहाँ बना लिया। तो you're saying corporates भी ABCD। एब्सोल्युटली। एक चीज और बताओ, फॉर एन इन्वेस्टर, नाउ लेट्स टॉक फ्रॉम एन इन्वेस्टर perspective, व्हेन एन इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट इन एन ऑफिस स्पेस, पहली चीज वो ऑफिस स्पेस में क्यों इन्वेस्ट करे, दूसरी चीज उसको क्या क्या देखना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एन ऑफिस स्पेस। देखिए, सबसे पहली जो मेरे को लगता है जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टर का 2 तरह से माइंडसेट होना चाहिए। एक माइंडसेट जो कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, कि आज उसने 20,000 का लिया, कल को वो कितने का बेच सकता है, राइट? कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेच कर रहा है। एक होता है रेंटल पर्सपेक्टिव से, कि उसको अपनी रेंटल इनकम बढ़ाना है, कि उसको पता है अब आज अगर मेरे से पूछो, आज एक्सटेंशन रोड पे 125, 130, 140 रुपए एस्टेब्लिश हो गया, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ द बिल्डिंग, राइट? और आज जो भी यहाँ पर खरीदेगा उसको पता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ पर 150, 160, 170 रुपए रेंटल होना ही होना है, राइट? तो और जब कमर्शियल बिल्डिंग चढ़ जाती है, राइट, जब अब आपकी ये बिल्डिंग अगर चढ़ी हुई है तो वो रिटर्न पे बिकती है, ROI पे बिकती है, 5% 5% पे, 5.5% पे, 6% पे वो ROI पे बिकती है। 6 पे नहीं मिलती भरत भाई इस समय। नहीं मिलती है, बट कोई बात नहीं। बट मैं ये जानता हूँ कि किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है आज, अगर रियल एस्टेट में, फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होनी चाहिए कि उसको ग्रेड A बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ग्रेड A में बड़ी अच्छी बात किसी ने मुझे बोली, अगर आप, मैं नाम भी ले लेता हूँ, चलो, मेरे को किसी आप जैसे एक्सपर्ट ने बोला, कहते भरत भाई अगर आप मैग्नम ग्लोबल जाओ, आपको ये बिल्डिंग कैसी लगती है? भाई मुझे तो ये बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती है विपिन भाई, आई रियली लव दिस बिल्डिंग। ये सर आप वहाँ जाके नोटिस करना कि आपको बहुत ही कम ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो A ग्रेड कंपनीज हैं। तो मैंने कहा यार वो क्यों? कहता सर जो A ग्रेड कंपनीज होती हैं ना, उनका एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि द बिल्डिंग हैज़ टू बी प्लेटिनम और गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग, राइट? द ब्रांड, नाउ व्हेन आई से ब्रांड, if it is a DLF building, yeah, developer, it is very important. So if it is a DLF or a EMAR, there is a very high probability that corporates, अब मैं जब भी interact करता हूँ अपने customers से as a chief sales officer, I feel that these customers, they also have certain brand value, respect for that respect for the brand. Yeah. तो एक तो ये हो गया कि आप ब्रांड देखिए, ग्रेड देखिए, ग्रेड A डेवलपर हो, सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ इट इज़ गोल्ड सर्टिफाइड और प्लेटिनम सर्टिफाइड, जैसे मेरी IBC जो है इट इज़ प्लेटिनम सर्टिफाइड। सो अगर किसको नॉलेज है तो वो कहता है यार प्लेटिनम सर्टिफाइड, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर सिर्फ एक AIPL का बिजनेस पार्क है जहाँ पर उनका खुद का ऑफिस है, गोल्ड राइट? दैट इज ओनली आई थिंक प्लेटिनम सर्टिफाइड। दैट्स गोल्ड। अब जो ऑटोग्राफ डिलीवर हुआ दैट इज प्लैटिनम। दैट इज प्लैटिनम। तो इवन दैट इज ऑल्सो ना ब्यूटिफुल बिल्डिंग। सो सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, कि उस कंपनी का माइंडसेट क्या है। अगर कंपनी का, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने मिनिमम जो अपना साइज़ रखा वो 4,000 स्क्वायर फीट रखा। स्टार्टा में बेचा मैंने, 4,000 स्क्वायर फीट का साइज़ रखा, बिकॉज आई वांट गुड पीपल टू कम देयर। 4,000 स्क्वायर फीट का अगर कोई ऑफिस ले रहा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 5-6 लाख 7 लाख रुपए का उसका रेंट होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा ही कोई कॉर्पोरेट आएगा, राइट? तो ये विजन किसका है? ये ब्रांड का विजन है। अब जैसे किसी ने मुझे बोला कि भरत भाई आपकी जो बड़ी वाली फ्लोर प्लेट्स हैं आप उसको वर्चुअली बेच दो। कंपनी बेचेगी नहीं वर्चुअली, बिकॉज दैट इज नॉट लीगली करेक्ट। So selling a virtual space in a commercial is actually not legally right, but there are a lot of developers who are doing it. So brand is very important, company is very important, area is very important, and above all, I feel that again there are a message to so many investors that they buy on a assured return. I don't know whether it will be liked by my industry colleagues or not.
but assured return is nothing but your own money which has been passed on to pass back to you. you. Yeah. So don't buy it as a financial instrument. It's a real estate. It's in an asset class which is real, tangible. Yeah. So buy it like that only. So I feel that assured return, is nothing but a financial scheme which a developer sells to a customer to lure him. But ultimately, if he's delivering right, if he's delivering, at the time promised, Yeah. and if he's, so for example, my leasing team is very strong. I give lease assistance to my customer. So the people are happy. I don't commit them that I lease it. But they know my leasing team. If I Very make them, strong. one of my team member, who's heading leasing, right? When I make them meet her, she gives them a confidence that, boss, I have already done so much of leasing. I've been in this industry for 20 years. To an extent, I was, sitting with her because leasing, in my earlier portfolio, I was not having this portfolio. So I just told her that I want to meet all IPCs. Can you imagine? She arranged, all IPCs meetings with me in just 24 hours. Yeah. So that's the kind of team these companies who are grade A companies they have. So leasing, अब आपने प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन वो लीज नहीं हो रही, लीज नहीं हो रही. दैट इज अ बिग पेन. बॉस, आपको उसका मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, विच विल बी 20 to 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट. आराम से. तो वो आपको देना ही पड़ेगा कि आपने 3 साल तो एश्योर्ड रिटर्न खाई, पोजीशन के बाद वो एश्योर्ड रिटर्न एक्चुअली वापस कर रहे हो, हाँ. अगर वो लीज नहीं हो रही है तो. करेक्ट. So it is very important to have a look on these parameters while buying a corporate. एक ग्रेड ए एसेट जब रेडी होता है, व्हाट इज द टेन्योर की उसके अंदर, जैसे 5 लाख फुट 10 लाख फुट का ऑफिस रेडी हुआ, कितने टेन्योर में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो 100% लीज आउट हो जाएगा? देखिए, लीज आउट तो वो पहले ही हो जाना चाहिए. हाँ. जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ. येस्टरडे आई वाज विद वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ कुशमैन, राइट? सो शी वाज टेलिंग मी कि सर, डीएलएफ का जो एक प्रोजेक्ट है, एट्रियम इज विद हाइंस, वो डिफरेंट है. डीएलएफ 1 जो आपका ये एम्बियंस के साथ है, एम्बियंस के साथ, तो सर उसका जो फ्यूचर एक्सपेंशन है वो ऑलरेडी लीज्ड आउट हो गया है. 100% लीज्ड आउट, जो कि 2028 में आना है, 2029 में आना है. सो अ गुड कंपनीज, अब मुझे, अगर आप मुझसे पूछो, अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू एक्चुअली गो एंड अप्रोच पीपल फॉर लीजिंग माई प्रॉपर्टी. बट जो मेरी बिल्डिंग जो बन रही है, आईबीसी बन रही है, आई थिंक 1.5 साल पहले पोजीशन के, इफ आई गो इन द मार्केट, इट विल बी लीज्ड 100%. So leasing is extremely important. I think that's the main criteria a person should look at. So one should always buy. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमने पहले भी बात करी विपिन जी, कि कमर्शियल डिपेंडेंट ऑन रेजिडेंशियल. अगर आसपास रेजिडेंशियल है तो वहाँ कमर्शियल चलेगा ही चलेगा, चाहे वो रिटेल हो, चाहे ऑफिस स्पेस हो, राइट? वॉक टू वर्क, एग्जैक्टली, राइट. बट अगर आप, मतलब गुड़गांव में आज भी ऐसे ब्यूटीफुल कमर्शियल स्पेसेस आई नो, जो कि इनको देख के ऐसे लगता है कि यार वाओ, डेवलपर ने क्या काम किया है, उनमें लीजिंग ही नहीं हुई. वो पूरा का पूरा खाली पड़ा है. लोगों ने उसको खरीद लिया, बट लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बॉस कि वो डेवलपर भी अच्छा है, उसने बना भी देना है, बट वहाँ पर रेजिडेंशियल है ही नहीं, तो वो लीज कैसे होगा? वो लीज हो ही नहीं सकता विपिन जी. आज अगर मेरे को बोला जाए कि मैं 50 किलोमीटर दूर जाऊँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा. हाँ, मैं नहीं जाऊँगा 50 किलोमीटर. मुझे तो 10 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में रहना है. और ये जो यंग जनरेशन है आज की डेट में, बहुत इसके लिए वो है. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली bought apartments in Gurgaon. और लीज्ड अपार्टमेंट. Why? Because they don't want to travel 2 hours from Delhi to Gurgaon, because ultimately they are coming here. सुबह जब आपने दिल्ली से गुड़गांव आना है विपिन भाई, it takes you 2 hours from whichever place you are coming from Delhi. तो वो 2 घंटे में ट्रैवल टाइम की बजाय मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, वो मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ अपने खुद के पर्सनल कामों के अंदर, अपनी हेल्थ पे, वॉक पे जाऊँ, जिम में जाऊँ, rather than sitting in the car. So I think it is very critical and important. Again, I would say that commercial and residential, they go hand in hand. Yeah. एक final question. Like this project has done very well, sold very well, बहुत बढ़िया हुआ. And your company is from UAE, जहाँ पे
अभी थोड़ा हलचल थी बिकॉज ऑफ वॉर, एंड दो इट्स द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ यूएई, लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि यार कंपनी तो यूएई की है और हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा? डिड पीपल हैव एनी क्वेश्चंस और दे जस्ट वेंट अहेड? एंड व्हाट वाज द रीजन दे वेंट अहेड? देखिए विपिन भाई, आप दुबई गए होगे हमेशा, हमेशा ही तो दुबई में ना एक चीज़ है जो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वही इमारत, वो है ईमार का नाम। हाँ, हर जगह, तो आप लेफ्ट देखेंगे हर ईमार जगह, नजर आएगा, राइट देखेंगे ईमार Everywhere, नजर आएगा, एवरीवेयर इट इज़ ईमार। सो आई टेल यू, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, मुझे कुछ ही दिन हुए थे, तो एक ईडीएम आता है मेरे पास, नॉट फ्रॉम माई कंपनी, समबडी फ्रॉम दुबई, हाँ, कि हमारी कंपनी ने अराउंड 11 बिलियन और मे बी 9 बिलियन का डिविडेंड अनाउंस किया। वाओ, So our company is so strong that whatever happens, they will take care of their investors. They will take, and today I feel proud in saying it that it's been a month and a half I am in this company. I need not to introduce myself or my company. The moment I say Emaar, everybody knows everybody it. knows. Everybody knows it. It's a big brand. Wherein I feel that the question which you said, Emaar is a very strong company financially, right? And I would say that in 2025, Emaar sold $33 billion Yeah, property in Dubai, correct. right? We are in various countries. We are in Pakistan as well. I was talking to somebody who came from UAE to our company, and I was telling him, how's Pakistan market and what kind of project it is. So he was explaining me, that it is a beautiful beach-facing project. And then I spoke about Egypt. So we have project in Egypt also. So we as a company are welcome in all the countries to come and develop, right? We are having that kind of reputation. But coming from the developers of Burj Khalifa, it has not been declared the wonder, but it is a wonder. It is a wonder. It is a wonder. And I feel that as a company, we had only a concern for the world, right? We had a concern for UAE because, it was most affected, being very close to Yeah. the war area, War zone, yeah. war zone. But right now, I wish and I pray that this should be now over. Things should be stabilized. Dubai being Dubai, now a lot of travelers have again started going there. A lot of people I know, are already in Dubai. Yeah, already in Dubai. And they are telling it is absolutely normal now there. And I wish and pray that everything should be normal. आपको पता है, आपने मेरे सेकंड लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया. पहले ही दे दिया. It is very simple. मतलब my take to any investor would be investing in a commercial real estate, bank on the developer. Absolutely. Finish. Absolutely. Because in residential what happens is, ऊंचा नीचा बन गया ना रेजिडेंशियल, मैटर नहीं करेगा, थोड़ा सा प्राइस कम बढ़ेगा, थोड़ा सा किराया कम होगा, इतना ही होगा, रेजिडेंशियल को नुकसान भर जाएगा. बट कमर्शियल अगर गलत जगह से आपने ले लिया, वो ख़त्म है. Absolutely. सो इन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, only bank on the Brand. They will take care of the rest. Absolutely. Absolutely. I think that's it. So thank you very much, Bharat. Thank you for Thank you very again much. being Bharat a- bhai. It is always a pleasure. I was very excited when you gave me a call that Bharat bhai, you have to come again. It is always a pleasure. I still remember when you gave us honor by inviting us to a hotel, and where all of them were there who attended your The podcast. first Yeah, 50. First 50. And everybody was very excited that day that, you really did it well. Yeah. It is a great achievement for you as a real estate fraternity. I would like to congratulate you. It's only you who's actually been able to execute it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for bringing me here. Thank you. Thank you everybody for watching. Do comment, like and subscribe to our channel. Thank you.